Good morning friends, myself Jitendra Rawal, school lecturer posted at Government Senior Secondary School Sumerpur. As per the SMILE program initiated by the Government of Rajasthan to increase awareness about online education, I am going to discuss on the very important topic related with the verbs that is written on the board, that is finite and non-finite verbs. The clear meaning that what are the finite verbs. Let's take the example. I play cricket. She plays cricket. Now, in these two examples, I have used the verb play. So you can see in the first sentence the verb play, and in the second sentence also I have used the verb play. Now you can clearly see that the verb which is used in these two sentences is getting changed. They are getting affected by the subject. One more example. You play cricket. So here in this sentence also the verb play is unchanged by the subject you. Alright. So what are the finite verbs? Finite verbs are those verbs which are getting affected by the persons. When I talk about the persons, then we should be very clear in English language that there are three persons: first person, second person and थर्ड पर्सन. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तीन पर्सन्स होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द स्पीकर हिमसेल्फ. अब स्पीकर कौन होगा? जो मैं बोल रहा हूँ, आई. सो आई एम द स्पीकर. ऑलराइट. सो आई इज द फर्स्ट पर्सन. एट द सेम टाइम जब हम समूह के अंदर बात कर रहे होते हैं, एक समूह के रूप में जो चर्चा हो रही होती है, तो वहां वी का प्रयोग होता है. तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई एंड वी. Second person, whatever the sentences spoken by the first person are listened by the second person. तो जो फर्स्ट पर्सन के द्वारा कहे गए सेंटेंसेस होते हैं वो रिसीवर के द्वारा, सेकंड पर्सन के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है, उसको सुना जाता है. तो वो रिसीवर कौन सा होता है? यू. सो यू इज द सेकंड पर्सन. ऑलराइट. एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होता है कि जो स्पीकर का सेंटेंस होता है और अगर वो सेंटेंस को जो है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द अनदर फेलो और थर्ड पर्सन, देन दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. इसके अंतर्गत जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, राम, सीता एक्सेट्रा. तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट फाइनाइट वर्ब्स चेंज एज पर द पर्सन of the subject. Clear to you? Finite verb सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है, कौन कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज हो रही है तो वो फाइनाइट वर्ब है. क्लियर? सेकेंड इंडिकेटर ऑफ द फाइनाइट वर्ब इज व्हाट? that finite verbs are also getting affected by the number of the subject. Persons of the subject is clear to you.
नाउ सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. अब नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स में जैसे मान लो सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल वो हमको पता है इट इज वी नो दैट देयर आर टू नंबर्स. नंबर्स का मतलब संख्या है ना. तो सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब जो है वो चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल ही वॉचेज TV. They watch TV. All right. Now in these two sentences, I have used singular subject and plural subject. तो singular subject जहाँ पर लगा है तो वहाँ पर verb जो है वो प्रभावित होकर के watches के रूप में यूज की जाती है. It is in the present simple. ना तो present simple के अंदर हमको एस या es जो है वो वर्ब के साथ ऐड करना पड़ता है. Why? Because the subject is singular. When the subject is plural, they is plural subject. When the subject is plural, then we did not have to change the main verb and we should not add s or es to the verb. जब plural subject होता है तो verb के साथ हमें s या es जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है. तो second indicator of the finite verb is what? That they are getting affected by the subject, person of the subject and number of the subject. Number of the subject. तो फाइनाइट वर्ब बहुत ही क्लियर है कि सबसे पहले पहला इंडिकेटर है फाइनाइट वर्ब का कि वो पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी. वेदर इट इज यूज्ड एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में जो है वर्ब का उपयोग जो है वो भिन्नता के साथ यूज किया जाएगा और वो जो है अफेक्टेड होगी. नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है या प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वर्ब का उपयोग जो है वो डिफरेंट तरीके से होगा. और मेन इंपॉर्टेंट एक सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर फाइनाइट वर्ब का है वो पॉइंट ये है कि फाइनाइट वर्ब्स शो टेंस. फाइनाइट वर्ब्स शो और एक्सप्रेस टेंस ऑफ द सेंटेंस. फाइनाइट वर्ब जो है वो हमें टेंस ज्ञात करने में मदद करती है. अब आप देखिए जैसे हियर व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट. तो आई प्ले क्रिकेट के अंदर जो है वर्ब जो है वो प्ले यूज हुई है. फर्स्ट पर्सन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज हुई है तो ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है. एक और एग्जांपल देखिए जैसे दे watched TV. She played cricket. तो they watched TV, she played cricket. तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है और ये पास्ट टेंस के अंदर हमको जो है बता रही है. तो when we look at the verb, then we get to know about the tense of the subject. And here, since it is the second form of the verb is used, therefore we can say that it is a past simple tense. Alright, so I hope you are very clear with the topic of finite verb. फाइनाइट वर्ब का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस को शो करती है. हमेशा हमको याद रखना है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब हमको टेंस को बता रही है, दे आर वर्किंग इन द गार्डन ना, शी इज कुकिंग फूड,
तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है टेंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो वहां पर कुकिंग वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब है। उसी प्रकार से दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 3 years, तो हियर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको बता रहा है, तो वहां पर जो है वर्किंग है या लिविंग है, ये वर्ब्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो टेंस को बता रही है। दूसरी चीज, फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रभावित होती है। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसका उपयोग जो है वो प्रभावित होगा, उसका यूज जो है वो सेंटेंस के अंदर प्रभावित होगा। और दूसरा पॉइंट जो है कि फाइनाइट वर्ब का जो है पर्सन के अकॉर्डिंग भी वो प्रभावित होती है कि फाइनाइट वर्ब का पर्सन किस प्रकार से यूज हुआ है। सब्जेक्ट जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो उस प्रकार से चेंज होगी, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो उस प्रकार से चेंज होगी, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग उसका यूज जो है वो डिफरेंटली होगा। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब।